Good morning, guys. Now, in this class, we'll be studying what? The fundamental unit of life. So, of science, biology, class 9th. Okay. So, basically, in this chapter, we'll be talking about cells. What are these cells now? What are these cells now? Okay, so basically, we know to make a big wall, we'll be requiring the cells, right? Yes, of course, cells, I mean bricks. Yes, to make a big wall, we'll be requiring so many bricks, right? And when we combine those bricks together, then only it will form a wall. है कि नहीं? Now it is a wall, right? So means to make a wall, we'll be requiring bricks for it. Okay? Imagine the wall is your body. Imagine क्या करना है कि जो ये wall है ना, मान लिया ये मेरा शरीर है, ठीक है? It's our body. So when we combine so many cells together, then it forms a human body. Cells बहुत छोटे होते हैं, they are very very tiny. A cell is the structural and functional unit of all the life, and it is very very small. Okay, and the cell can perform each and every life process: respiration, excretion, and so many. Okay, the cells can perform all the life process. So basically we can say that अब हम मान लें कि जो ये सर्कल है, बॉडी है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है. एंड फॉर दैट, ओ माय गॉड, वेट, दिस इज अ बॉडी. And for that, we'll be requiring so many cells. Cells are the small structure. And when we combine so many cells together, then only it forms a human body. So, cells are so tiny that we can't be able to see them. Okay? So, हम क्या मान रहे हैं कि जो ये रेड हमारे डॉट्स है, these are cells, and the white circle is our human body. So for that, cells are very very necessary. Cells are very small, which cannot be seen by our naked eyes. We'll require the microscope to observe those cells, right? Okay, ये होते हैं भाई. Hope it is clear. So a cell is a structural and functional unit of life, and it can exist इंडिपेंडेंटली. अब हमारी बॉडी में, राइट, हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, ठीक है, हमारी बॉडी लाइक सो बिग, ये बन गई हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, राइट. सो जब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, हमारी शरीर इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली कि हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होंगे, सेल्स होंगे, राइट. सो इन अ ह्यूमन बॉडी देयर आर billions and trillions of cells. Billions and trillions of cells. Because देखो cells बहुत छोटे होते हैं. अब छोटे छोटे सेल्स को, इतना ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स को मिला दिया गया है कि हम एक बड़ी सी बॉडी फॉर्म हो गई है, और आसपास जो भी चीज़ हमें दिखाई दे देती है, राइट,
द स्मॉल ant, ठीक है, चीटा चीटी वट एवर, वो हमें दिखाई दे रहे हैं बट दे आर स्मॉल. उनमें भी एटलीस्ट बहुत से सेल्स, उनमें भी वो भी बहुत से सेल से बने, मिलियंस मिलियन सेल से वो भी बने हैं. क्यों बने हैं भाई? वो तो हमसे छोटे हैं. नहीं, देखो छोटे की बात नहीं है, बात ये है दैट जो चीज़ हमें दिखाई देती है, राइट, हमें आंट, चीटा चीटी, लाइक ऑल दीज थिंग्स वी कैन सी, राइट. तो जो चीज़ हम देख पाते हैं दैट इज़ मेड विथ मेनी सेल्स, क्योंकि एक सेल तो लाइक इज टू स्मॉल एंड वी कैनॉट observe them, right. The one cell is like so small and we cannot observe them, but जब एक ही बॉडी में बहुत से सेल्स बन जाती तब हम वो देख पाते हैं. Getting it? Okay, I'm sorry. And there are few organisms who are made with only single cell, जो सिर्फ एक सेल से बने हैं. अब एक सेल भी भाई इतना भी नहीं है, वो ये तो बहुत बड़ा है. एक वन सेल इज very very small. So there are organisms who are made with only one cell, and examples are amoeba, paramecium, okay, and there are so many. ठीक है. So these organisms, right, these all are made with single cell. ये सब जो organism है ये सिर्फ एक सेल से बने. अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो बेसिकली सब सेल का एक अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है. एवरी सेल हैज़ सम functions. Few cells are there for respiration, few are there for digestion, excretion and all these processes, right. बट जो पैरामीशियम है, अमीबा है, इनमें तो सिर्फ सिंगल सेल है. अब रही बात ये कि हाउ मीन्स उनकी बॉडी में क्या है, कैसा प्रोसेस कौन करता होगा ये सब प्रोसेस. सो बेसिकली द सिंगल सेल आर ओनली केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द लाइफ प्रोसेस इन दोज ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ एक सेल के बने, राइट. और यही एक सेल इनका सारा फंक्शंस क्या करता है, ठीक है. सब फंक्शंस यही करता है. ओके. सो जस्ट एज अ बिल्डिंग आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स, ओके. और बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, organisms are of generally two types. Means एक होते हैं भाई unicellular organisms, अरे organism, and one is multicellular organisms, right. As the name suggests, unicellular. Uni means what? Uni means one. Clear? Uni means one and cellular means cell. ठीक है. जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ऑर्गेनिजम्स who are made with only and only single cell, those organisms are only called as unicellular organisms. Clear? Uni means one, that's why we call them as unicellular organisms. Wait, it's I. Okay. Now who are they? Multi means what? Many, right. Cellular means cell. Organisms who are made with many and many cells, they all are called as multicellular organisms. Organisms जो बहुत सारे सेल्स के बनते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. Hope it is clear. Yes. For example, you can take the example of wait. I should draw first.
और क्या एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर आर अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमेटोमनस. No. Okay. Wait. I think here will be Y somewhere. Okay. These are the examples of unicellular. And then comes your multicellular. Okay. The example of multicellular organisms are basically we people. ह्यूमन बीन हम लोग तो इतने बड़े हैं कि हम लोग के शरीर में कितने सारे सेल्स होंगे. ऑल द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, व्हाटएवर जो हमें दिखाई देता है, राइट, एवरीवन. बट जितने भी आप पता है सेल्स ना, एक तो होते हैं, वन इज लिविंग सेल, वन इज living cell and one is dead cell. We human being are made with living cell, and all the non-living things are made with this dead cells. Clear now? Clear? Okay. अब पता है ये जो सेल है ना, ये बार बार देखो, हाँ, हम अपने पूरे समय में क्या करते हैं, कभी पैर अपना ऐसे से हिलाते रहते हैं, दबाते हैं, हाथ दबाते हैं. when we what you can say, हाँ, जैसे हम पूरे दिन क्या करते हैं, कोई अपना हाथ दबाता है, पैर दबाते हैं, ऑल दीज थिंग्स. जब हम अपना हाथ पैर जो भी दबाते हैं, मान लिया यहाँ की जो जगह हम अपने पैर को ऐसे ऐसे क्या करें, दबा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उस समय, दे ऑल डेड. मीन्स दबाते समय क्या होता है, जितने भी सेल, जब हम उनको दबाते हैं तो जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. बट आफ्टर दैट अगेन न्यू सेल अराइज. ठीक है. सो यही होता है बेसिकली, इसी को बोलते हैं, यहाँ देखो लिखा है, वी कैन से दैट the old and worn out cells are continuously replaced by new cells. देखो, जितने भी ओल्ड सेल हैं, वॉर्न आउट सेल हैं, जो भी बूढ़े हो गए, ओल्ड सेल, राइट, दे आर रिप्लेस, मतलब कि उनके जगह पे न्यू सेल अराइज होते हैं उसी पर्टिकुलर जगह पर. ठीक है. ओके. नाउ cytology is the branch of biology under which cell structure is studied. What is this cytobiology? No, I'm sorry, it's cytology. I'm so sorry, it is cytology. So cytology is the branch of science in which we study about the cell. In cytology we study about the cell. हम उस साइटोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई क्या है इसमें. अब ये जो नेम है साइटोलॉजी, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय सेल बायोलॉजी. इट इज़ replaced by cell biology. Cell biology. I should write? Okay. It's replaced by cell biology. Okay. तो साइटोलॉजी क्या था, इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते थे, बट अब क्या हो गया, इसका नेम चेंज हो गया है और अब हो गया है सेल बायोलॉजी. This much is clear? Okay.
Now come to the first topic. अभी तक तो हम we all were studying only introduction. Okay, now we have to come to the first topic, and the first topic is what living organisms are made up of cells. Okay. नहीं, ये लिखा है what living organisms are made up of. हम लोग किस चीज़ के बने हैं. अब ये तो होता है ना कि हम बने तो बने हैं, बट बने किस चीज़ के हैं वो हमें जानना है. तो बेसिकली हम सेल्स के बनते हैं. ठीक है. जब बहुत सारे सेल कंबाइन होता है तो वो टिश्यू फॉर्म करता है. जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं देन इट फॉर्म्स एन ऑर्गन. द ऑर्गन वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम. और जब ये ऑर्गन एक साथ वर्क करता है, ठीक है, तो वो एक सिस्टम फॉर्म करता है. एंड ऑल दो सिस्टम्स फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली ये फ्लो चार्ट होता है. सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म से सिस्टम, सिस्टम से नहीं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम एंड सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये अभी हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है. ओके, तो नाउ वी हैव टू कम इन अ फर्स्ट टॉपिक, व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ. हम किस चीज़ के बनते हैं. तो हमको तो ये पता है कि हम सेल्स के बनते हैं, राइट. वी नो दैट, वी आर जीनियस. ओके, so basically the following two activities we don't have to do. Cells are the building block of all plants and animals. अब सेल क्या होते हैं, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. मतलब कि जब हम बहुत सारे सेल्स को ऐसे जोड़ते रहते हैं तब ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. अब प्लांट्स में भी भाई, प्लांट्स के अंदर भी लिविंग सेल होते हैं. एज इट ऑल्सो मेक देयर ओन फूड, इट ऑल्सो व्हाट breathes, right. तो प्लांट्स के अंदर भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो सेल क्या होते हैं, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक of all plants and animals. मतलब कि अगर सेल नहीं होते तो हम भी नहीं होते, इतना जान लो. विदाउट सेल वी आर नॉट हियर. ओके, सो बेसिकली whenever we combine so many cells together it forms plants or an animal, right. So basically cells are what, cells are the building block of life. Okay, the second point is saying a cell is capable of independent existence and perform all the basic functions of life. I already told you, as in human body there are so many cells and all these cells are here to perform all the life processes, but there are organisms who are made with only and only one cell. Now the question that comes is, जब वो एक ही सेल के बनते तो उनके अंदर का लाइफ प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है. वही सिंगल सेल अपना सब प्रोसेस परफॉर्म करती है. ठीक है, वही डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन. वही एक सिंगल सेल ओनली परफॉर्म ऑल दी प्रोसेस, वो सब प्रोसेस परफॉर्म करती है. ओके, सो अ सेल इज केपेबल, वो केपेबल है, उसके अंदर क्षमता है ऑफ व्हाट, ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस. वो अकेले भी रह सकता है एंड इट विल परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस. क्लियर नाउ. ओके, इट्स गोइंग ऑन. The third thing is every organism starts its life with a single cell. हाँ, ये तो करेक्ट है. हम जब छोटे होंगे, बहुत जब छोटे होंगे, तो हम एक डॉट के सेल से सिर्फ बने होंगे. बट आफ्टर दैट जब हम बड़े होने लगे, बड़े कैसे होंगे, जब हमारे बॉडी में सेल डिविजन होगा. अभी ये क्या होता है,
सेल डिविजन मतलब होता है कि एक सेल अब क्या करेगी, एक सेल से दो सेल आ जाएंगे, दो से इससे फिर दो आ जाएंगे, इससे दो आ जाएंगे, इससे दो आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके कितने सारे सेल्स बन गए, राइट। इसी को हम सेल डिविजन बोलते हैं, ठीक है, इसी को सेल डिविजन बोलते हैं। तो एवरी ऑर्गेनिजम्स, ये ऑब्वियस ही बात है कि सब ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को पहले एक ही सेल से स्टार्ट करे होंगे एंड आफ्टर डैट वो एक ही सेल क्या होती लगी, मल्टीप्लाई होने लगी, राइट। सो यही होता है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल, सब अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, वही सिंगल सेल मल्टीप्लाइज इटसेल्फ और तब वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती है, ठीक है। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ओल्ड एंड worn out cells are continuously replaced by new cells. I told you, जितने भी बेकार सेल्स हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, जिनका लाइफ स्पैन अब ख़त्म होने वाला है, तो बेसिकली वो ओल्ड एंड worn out सेल्स, वो सब सेल्स क्या होती हैं, उन्हें कौन रिप्लेस करता है, न्यू सेल्स, उनकी जगह पर न्यू सेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। Many cells together form a tissue and many tissues forms an organ. The organ work together as a system and it forms organisms. अब देखो टिश्यूज़, पहले तो सेल्स क्या, जब बहुत से सेल्स मिल जाती हैं तो एक बड़ा सा थोड़ा टिश्यू फॉर्म करती हैं। जब ये टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन लाइक लंग्स एंड ऑल, ओके, ये ऑर्गन होते हैं, ये फॉर्म करते हैं। जब ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं तो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं और जब ये सिस्टम पूरे मिल जाते हैं देन इट फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म, तब हम बनते हैं। हमें कितना वेट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो वी आर नाउ, आई थिंक इट इज़ द first topic, I think it's all completed, the first topic is completed. So in the next video we'll be continuing this chapter by the second part, and in that we'll be studying generally what we'll be studying the discovery of cell, that who actually discovered the cell. So till then, stay connected and thank you.